the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. But please join me in thanking every American service member who bravely is standing in harm's way. They really are incredible, and I just want to thank you. We have a lot of them right here. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. We have a lot of great service members here with us, too, in this beautiful building. Isn't it beautiful? We're adding on to the building a little bit. We're improving the building. See that nice drape? When that comes down right now, you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors, because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always like gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains. But, and it'll be spectacular. It'll be the most beautiful ballroom. I believe it, because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you hear all that hammering out there, you know why the First Lady is not thrilled exactly. She said, will the pile drivers ever stop? You know, they go from 6 in the morning till 11:30 in the evening. Can you imagine? Here? You know what? To me, that's a beautiful sound. She doesn't like it. I love it. You know what? To me, other than here, because we're donating it, not a penny to the taxpayer. It'll be under budget, ahead of schedule. It'll be $400 million or less. Most people say $400 million or more. No, it'll be less. But when I hear that sound, that beautiful sound behind me, it means money, so I like it. But my wife isn't thrilled. She said, this is getting crazy. I said, don't worry about it. We'll be all finished up in a few months. But now, for the reason that we're gathered this morning to recognize the unsurpassed courage of 3 really incredible American heroes, 1 living and 2 no longer with us. So together, we recognize the exceptional valor of Master Sergeant Roderick Edmonds. And maybe I could ask your families to stand, because they're beautiful families. I got to meet them, and please. So Staff Sergeant Michael Ollis and Command Sergeant Major Terry Richardson, as they receive our nation's highest military award, the Congressional Medal of Honor. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के खिलाफ अभियान जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका बयान सामने आने वाला था, उन्होंने कह दिया है अभियान जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, 4 से 5 हफ्ते ये युद्ध चल सकता है। संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर इस खबर पर जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, ये बहुत अहम हो जाता है। 4 से 5 हफ्ते अगर ये युद्ध खिंचेगा तो जाहिर है इसमें दोनों ओर से बॉम्बिंग होगी, तो सभी इस युद्ध में कूदेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी उस दिशा में, क्योंकि 4 से 5 हफ्ते तो बहुत वक्त है। हाँ, पर ये तैयारियों का एक अंदाजा है जो आपको ट्रंप बता रहे हैं कि जिस तैयारी के साथ इस वक्त उनकी सेना पश्चिम एशिया में तैनात है, उसे 4 से 5 सप्ताह लड़ने की अभी क्षमता है। और इसके साथ इस बात का भी आकलन होगा कि क्या ईरान 4 से 5 सप्ताह लड़ पाएगा उसी वेग से, जिस वेग से फिलहाल वो लड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने 4 या 5 सप्ताह की बात की है। अपनी तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा है। जहां तक सवाल विश्व युद्ध का है, तो देखिए, विश्व युद्ध तब होगा जब विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे से भिड़ेंगी। और आज की तारीख में
जो कथित महाशक्ति रूस और चीन है वो इस मामले में तो फिलहाल शांत है। इसलिए इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने की जो गुंजाइश है वो फिलहाल तो जरा कम नजर आती है। ये एक लो स्केल वॉर है और इसमें जब तक कि बड़े प्लेयर्स नहीं घुसते हैं तब तक में ये विश्व युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन फिर दूसरा सवाल संजीव, फिर तो दूसरा सवाल ये बनता है कि अभी देखिए इसमें नेटो देश, बहुत से लोग हैं जो कि हमसे संपर्क करना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं ईरान में, और हम ईरान के खिलाफ तब तक एक्शन जारी रखेंगे जब तक कि हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और उन्होंने इस युद्ध को उचित ठहराया और कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पूरी दुनिया को सुरक्षित रखना होगा, और ईरान के नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि ये सुनहरा मौका है, उनके लिए हाथ से जाने न दे और अपने मुस्तकबिल को संभाले। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो वादा किया था हमने पूरा किया और अभी भी हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि अमेरिका एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ट्रंप का इस संबोधन में यही संदेश। नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति तक ये जारी रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति है क्या अमेरिका के लिए संजीव? क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे नहीं तो जब उतरेंगे नहीं, रेजिम चेंज वो होने नहीं जा रहा अभी जिस प्रकार का सपना अमेरिका देख रहा है, तो फिर लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में जाहिर है कि वो रेजिम चेंज चाहते हैं, पर रेजिम चेंज क्या इतनी आसानी से हो सकता है? फिलहाल लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है संभव। लेकिन लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने की जो बात कही जा रही है, दरअसल वो इसीलिए कि ईरान अगर अपने संसाधनों में कम पाया जाता है तो फिर उसके सामने, अमेरिका के सामने उसके लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और संभवतः तब जाकर के अमेरिका के आह्वान पर वो लोग जो कि पिछले 1-2 महीने प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सड़कों पर आएंगे और अपने तरीके की वहां पर सरकार बनाएंगे। हालांकि ये फिलहाल एक दूर की कौड़ी लगती है, ये बहुत आसान नहीं लगता है, और यही देखना पड़ेगा कि आखिरकार ईरान की जो अपनी ताकत है उसे कितने दिन तक सस्टेन करती है। अमेरिका और इजराइल मिलकर के एक बड़ी तैयारी के साथ उस क्षेत्र में मौजूद है, ये तो तय है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि ईरान अपनी तैयारियां किस स्तर की कर पाता है। जी, आज ही हम दिखा रहे थे संजीव, 11 देशों से अकेले इस वक्त ईरान लड़ रहा है। सऊदी पर लगातार उसके हमले जारी हैं, अरामको पर उसने हमला कर दिया। इसके अलावा अब इस वर्ल्ड वॉर में नेटो देश भी वो भी खड़े हो गए हैं कि वो भी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस युद्ध में कूदेंगे। दूसरा, बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनका भी रुख, अगर उन पर हमला होता है, भले ही वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो अमेरिका के हैं उन पर हमला हो रहा हो, लेकिन जाहिर है कि अगर उनको नुकसान होगा तो वो भी कूदेंगे। तो फिर आप आगे इस युद्ध को किस दिशा में जाता देख रहे हैं? ये जल्द खत्म होगा युद्ध इन सभी के कूदने से? ये क्या तय होने वाला है अब इसके बाद? देखिए, अब से कुछ देर पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने 164 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन, कुल मिलाकर 164 आज इंटरसेप्ट किए हैं। और जिस तरह से उनके अब तेवर बन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। कुछ इसी तरह का मिजाज दिखाया गया है फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। यानी कि अमेरिका के समर्थन में अब बहुत से देश ऐसे खड़े हो रहे हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि इस लड़ाई को लंबा खींचने की जो बात ट्रंप कह रहे हैं वो केवल अपने बलबूते नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिनके जरिए वो इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे। अगर दूसरा दृश्य देखें आप आशा, तो वहां पर आपको ईरान के साथ कौन खड़ा है ये मालूम करने में जरा दिक्कत पेश आएगी। तो ऐसे में ईरान कितनी दूर तक अपने दम पे ये लड़ाई खींच पाता है, ये इसी पर निर्भर करता है कि युद्ध आखिर कितने दिन चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है, जिस पोजीशन पर है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं कि अमेरिका के लिए जो घातक हो उस रूप में मजबूत हो ईरान। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे ये महाविनाशक हथियार जिनके बूते ये युद्ध लंबा खिंच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो दिखाते हैं आपको।